Hello everyone, welcome back to the session. As you all know, we have started with a series of mathematics optional for UPSC Civil Services exam, and we have already gone through two sessions which are basically going for representation of vectors from geometrical to matrix, and other is some prerequisites for vector space, that is set theory, not complete, only introduction of sets and fields, groups, those things. And that you will realize when you go through the definition of vector space in this book MCGen, you will realize that we need the understanding of group theory, right? Only a bit of groups and fields, right? And these are as I promised that I will let you know about the books for the topic. So these are two good books I found. One is Linear Algebra by Somseries, another is Vector Space and Matrix in Physics by MCGen, right? These are good books. There's some solved examples you can find which will help you in developing your understanding with the topic, and also some practice problems. Definitely we'll take practice problems from archive of UPSC, that is previous questions for mathematics, right? Alright, so without wasting time, let us begin with the topic. So today we are going to begin with the vector space first, right? And one more thing, actually I realized that instead of continuously talking in English, I should consider a few Hindi words also, and definitely my English is also not good, so I'm sorry for that. Okay, so let's start with vector space. And one more thing I want to tell you, that our task is not to kind of do PhD in vector space, right, or in any particular topic. Our task is to crack the exam. So I'll take you in that perspective. Okay, so instead of going through bookish language, I'll go through that language which is kind of useful for solving problems. Okay, so vector space is actually it includes a field, right, and it includes a field, let's say F, which is defined over some operations. Generally we'll take plus and dot, right, and a vector group V, which is defined over some operation. Let's say this one, let's call this plus and circle, or just call it operation O. Okay, it's fine. So what happens, we take some scalars from this field and some vectors from this and check for the scalar multiplication. If that scalar multiplication part falls in V, then we say it is kind of closer with respect to the vector scalar multiplication. No need to worry, I'm going to start from the beginning. So if we are going to prove that further group is a vector space or not, then mainly we need to follow four things, right? Mainly we need to follow four things. One is closure law, right? One is what? Closure law. Other is what? You need to put for existence of identity. Third, you need to go for existence of inverse. Fourth, you need to check for closure with respect to scalar multiplication. So basically I need to include closure here only, but okay, let me write it here. Closure with respect to scalar multiplication, right? It's not escape, scalar multiplication. All right. Okay, so we need to prove only these four things for a group to prove that it is a vector space. All right. Closure law means what? Suppose हमने दो elements लिए V से, let's say alpha and beta. These are two elements belonging to V, right? And if we find that if we are applying the operation here with this, and we find okay it is falling within V, then we say this closure law is satisfied. It's true, right? And it's not only with alpha and beta. This is also required to be kind of done for some A and B belonging to F. अगर हम दो एलिमेंट्स
स्केलर फील्ड से लेते हैं and we are multiplying, let's say is plus b, and we are multiplying with some alpha which is from v, right? So we must get the result as a dot alpha plus b dot alpha. Now I have a question. Should I place this plus sign here or should I encircle this? What should I do? Think of it. Pause the video for a while and think of it. हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो देखो, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर. सपोज ए से हमने मल्टीप्लाई किया अल्फा को, सो इट इज व्हाट? इज दैट अ स्केलर? नहीं, इट्स अ वेक्टर, राइट? सिमिलर इट इज ट्रू फॉर b डॉट अल्फा ऑल्सो. इट इज ऑल्सो अ वेक्टर. और वेक्टर के लिए हमारे पास क्या डिफाइंड ऑपरेशन है? दिस वन. ऑलराइट, सो पुट इट राउंड. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट हियर. तो दिस इज व्हाट द क्लोजर लॉ. यानी कि आपने दो कॉम्बिनेशन से, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन जो नया एलिमेंट बनाया है, दैट एलिमेंट मस्ट लाई विद इन द ग्रुप. अगर ऐसा होगा देन दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज एक्चुअली फॉलोइंग द क्लोजर लॉ एंड इट इज वन कंडीशन required to kind of to be a vector space for the group, right? So existence of identity in what sense? अगर हम यहाँ जब भी आइडेंटिटी की बात आए ना, so focus on what this operation actually, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसको एडिशन टर्म लेते हैं, हम सिंपल एडिशन टर्म लेते हैं, राइट? एडिशन मीन्स वेक्टर एडिशन. सो इट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब हुआ दैट यू आर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन विथ सम एलिमेंट एंड यू आर गेटिंग अल्फा रिटर्न. देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन विथ ई ऑन अल्फा. इन दैट केस वी कॉल दैट ई इज व्हाट? ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज लाइंग देयर इन वी. ऑलराइट, हम वेक्टर स्पेस के केस में ई को हम थीटा लेके चलेंगे अगर एडिशन का टर्म है, राइट? तो E equal to E is what? Theta in vector space. ध्यान रखना. और इसी को अगर हम बात करें स्केलर फील्ड की, तो जीरो होता है स्केलर फील्ड में, ठीक है? स्केलर फील्ड में जीरो, बिकॉज जीरो आप वन से ऐड करो, 1 प्लस जीरो इज व्हाट? इट्स 1 ओनली. 2 प्लस जीरो इज व्हाट? इट्स 2 ओनली. कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ता उस पर, राइट? गेटिंग इट? नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. अच्छा, अब इन्वर्स की बात आती है ना, तो ये जो आइडेंटिटी है ना, इसके रिस्पेक्ट में ही इन्वर्स देखना है आपने. ऑलराइट, ऐसा नहीं है कि कुछ और ढूंढ के लाए वहाँ से कि लेट्स से दिस इज द इन्वर्स. नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? इसको मैं थोड़ा डाउन मूव कर लूँ बिकॉज आई एम जस्ट रनिंग आउट ऑफ द स्पेस. हाँ, इट्स फाइन नाउ, ठीक है? ऑलराइट, सो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स मीन्स मुझे अल्फा के साथ यही ऑपरेशन रन करना है, कोई भी एक, लेट्स से अल्फा प्राइम, एंड आई मस्ट गेट ई, राइट? और इन सिंपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर स्पेस, सो आई शुड से थीटा, राइट? तो मुझे थीटा मिलना चाहिए. इट मीन्स सपोज 1 के साथ मैं ऐसा, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो 1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले, बिकॉज 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट? डेफिनेट सी बात है, -1. सो इट मीन्स दैट अल्फा प्राइम अगर मैं रखता हूँ माइनस अल्फा, यानी कि अगर एक वेक्टर इस तरह से चल रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक वेक्टर इस तरह से चल रहा है और दूसरा वेक्टर उसका ऑपोजिट बिल्कुल इस तरह से लिया मैंने, इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, राइट? मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो इस केस में अगर दोनों को ऐड करोगे, रिजल्ट क्या आना है? थीटा, राइट? इजंट इट? रिजल्ट थीटा आएगा, 0 वेक्टर. Getting it? All right. So it means you must get the inverse in such a way that when you are applying the operation with respect to the original element, you must get the identity element, right? You must get the identity element. Okay? ये है existence of inverse. और ध्यान रहे, identity and inverse ये change होते हैं आपके ऑपरेशनल टर्म के साथ. आप डॉट ऑपरेशन लगा रहे हैं या प्लस ऑपरेशन लगा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन दैट. ऑलराइट, ये उसके साथ चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, अब देखो जरा 1 इंटू अल्फा करो तभी अल्फा रिटर्न होगा, राइट? देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ 1 ऑन अल्फा. इट मीन्स अब आइडेंटिटी कौन हो गया? आइडेंटिटी हो गया 1. अब इस केस में आप इन्वर्स निकालना है तो भाई वेक्टर का इन्वर्स तो निकालना मुश्किल है मल्टीप्लिकेशन के टर्म में. क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका 1 बाई अल्फा लिख सकते हो, राइट? नथिंग ऑफ 1 ओवर नॉर्थ. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट, राइट? तो इस केस में नहीं बन पाएगा, ये एडिशन के केस में ही बन पाएगा इसीलिए, राइट? तो इसीलिए एडिशन का ही मैंने एग्जाम्पल भी लिया है यहाँ पर. ऑलराइट, ओके. नाउ क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट डज मीन? अगर आपने कोई ए टर्म ले लिया फील्ड से, स्केलर फील्ड से, एंड अल्फा ले लिया आपने वेक्टर फील्ड से, कुछ भी, राइट? राइट, कुछ भी मीन्स आई शुड से फॉर ऑल, यहाँ पर भी फॉर ऑल, राइट? मतलब किसी भी एलिमेंट को उठा लो, यू मस्ट गेट द रिजल्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू दैट जस्ट बिफोर, जस्ट नेक्स्ट टू इट, राइट? चलो अल्फा ले लिया हमने, सॉरी ए ले लिया हमने फील्ड से और अल्फा ले लिया वी से. इफ आई एम डूइंग दिस ए डॉट अल्फा, आई मस्ट गेट दिस न्यू एलिमेंट विद इन वी. अगर ये नया एलिमेंट जो बना है वो अगर v में लाई करता है, इट मीन्स दिस इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. गेटिंग इट? दिस इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो प्रैक्टिकल रीजन में जहां क्वेश्चन सॉल्व करना है, यही 4 पॉइंट्स आपको काम आने वाले हैं, राइट? सो कीप इन माइंड ऑलवेज दैट दीज 4 terms you need to prove every time if it required to kind of prove whether a particular example forms a vector space or not. Okay, ठीक है. तो इसमें MC-Jan का ही एक एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया है, राइट? आई एम हैविंग MC-Jan विद मी राइट नाउ. तो इसमें पेज नंबर 17, आई एम नॉट सॉल्विंग, इट इज ऑलरेडी सॉल्व देयर, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग टाइम हियर ऑन दैट, राइट? इट इज ऑलरेडी सॉल्व देयर. Example 2.1 on page number 17, right? So it is example 2.1, page number 17. It is MC-Jan, right? It is MC-Jan. You find it is asking for basically you need to prove whether the solution space for a given differential equation is that a vector space or not. यहाँ क्लियरली देख लो. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लोजर प्रूव करना है, राइट? हम कोई भी 2 ऑपरेशंस, ओके लेट्स डिस्कस दिस फॉर क्लैरिटी. मैं एग्जांपल को ले रहा हूँ बट इट्स नॉट काइंड ऑफ, इट्स जस्ट फॉर क्लैरिफाइंग द अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड है दैट इज y प्राइम प्लस px प्लस q x y इक्वल टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब कोई भी एक सॉल्यूशन स्पेस का कंसीडर कर लो. लेट्स से S इज अ सॉल्यूशन स्पेस, लेट्स से y1 y2 एंड सो ऑन, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है? इज अ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑलराइट, अब हमें प्रूव करना है whether it is forming a vector space or not. चलो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेक्टर स्पेस को, जैसा मैंने बताया, प्रूविंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज रियली हार्ड, बिकॉज इनवर्स कैसे निकालोगे, राइट? समझ गए? तो बेटर टू गो विद, जब भी बात आए समझ लो दे आस्किंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट? ऑलराइट, सो इट्स गुड टू टेक दैट. ऑलराइट, सो इसका मतलब अगर ये टोटल 0 है, RHS इसका देखो 0 है इक्वेशन का, ठीक है? इट मीन्स अगर मैं इसमें एक 0 टर्म इंक्लूड करूँ, सपोज यहाँ हमारे पास 0 भी एक टर्म है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैंने 0 छोटा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 0 एक टर्म है यहाँ पर, राइट? क्या 0 सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को? पुट करके देखो जरा. डेफिनेटली 0 सेटिस्फाई करेगा. जैसे ही 0 पुट करोगे y की जगह पे सब जगह 0 मिल जाएगा. RHS में भी 0 है, LHS में भी 0 है. इट मीन्स 0 डेफिनेटली बिलोंग्स टू S, राइट? एस 0 इज व्हाट? इट्स अ ट्रिवियल सॉल्यूशन,
trivial solution, right? Isn't it? जब भी RHS में हमारे पास 0 मिल रहा है तो LHS में अगर उस वैल्यू को पुट करेंगे, 0 को पुट करेंगे तो डेफिनेटली वो रिजल्ट देगा, हमें मैच करेगा RHS इक्वल टू LHS, दैट्स फाइन। अच्छा ठीक है, अब हम इसको सोल्यूशन, अभी हमने क्या किया, माना है इसको लेट, राइट। इसका मतलब हमें ये कंसीडर करके चलना पड़ेगा दैट इज फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन, अदरवाइज पहले उसको सॉल्यूशन प्रूव करना एटसेट्रा, वो तो फिर लेंथी काम हो जाएगा, वो अपना काम नहीं है यहाँ पर। वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे ना देन विल डिस्कस दैट थिंग, ऑलराइट, ओके। तो अगर y1 सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स व्हाट, एज y1 बिलोंग्स टू s, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y1 प्राइम प्लस px y1 prime plus q times x y going to be 0. Also y2 भी हमारा बिलोंग करता है s को, इसको हम कुछ इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। लेट्स सेट इज y2 प्राइम डबल प्राइम इज px, वेल आई गेस दिस प्राइम इज व्हाट एवरीवन नोज, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डबल प्राइम मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस है। स्पेस मीन्स एक्स में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, आर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन अभी यहाँ पर एक्स है तो हम मान के चलते हैं एक्स में होगा जहाँ तक है, राइट, ठीक है। अगर इस तरह से मिल जाए तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ऑलराइट। तो इसमें चिंता मत करना, अभी आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन सेक्शन, ऑलराइट। अच्छा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। नाउ इफ वी आर गोइंग टू, अच्छा दोनों जगह मैंने y लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट, एस y1 इट्स y2। नाउ ऐड 1 and 2, जरा ऐड करो इनको, व्हाट यू विल फाइंड, y1 प्लस y2 इज प्राइम, इट्स प्राइम, राइट, प्लस p टाइम्स x, इट्स गोइंग टू बी y1 प्राइम प्लस y2 प्राइम, राइट, plus q times x, take it out, y1 plus y2 and it's going to be 0, right, ठीक है। अब हल्का सा इसको बदलते हैं, if I'm writing y1 plus y2 double prime as y1 prime plus y2 prime, right, then what do you think, is it correct or you need to modify something? Definitely it's correct, right? अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, मिल जाएगा ये, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चिल मारो भी, ठीक है। I'll डिस्कस दीज थिंग्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि अभी बेकार में रायता फैलाने का कोई मतलब नहीं है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, सो लेट्स पुट इट हियर एंड सिमिलरली यू कैन राइट दिस ऑल्सो, राइट। So I'm writing also y1 prime y1 plus y2 double prime equal to y1 prime plus y2 prime, right। अब इनको यूटिलाइज कर लो using this particular equation in above equation, above means this particular, all right। So when you're going to use it, you'll find it's going to be y1 plus y2 double prime plus px, and here you're getting y1 plus y2 prime plus q times x. What you're getting here, y1 plus y2 going to be 0. अगर हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इट मीन्स सिंपली y1 plus y2 is basically a solution, is a solution, isn't it, of given space, given differential equation, I mean, all right, ये उसका एक solution है simply, ठीक है। इसका मतलब simple that it is basically belonging to y1 plus y2 belonging to S, the solution space। अब जैसे ही आया, ध्यान करो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, let me choose a different color, what was that, closure law, right। तो ये तो भाई क्लोजर है, ठीक है, एक बात हमने प्रूव कर ली।
और एक हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सी है, दिस पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। 2 पॉइंट हो गए, अब 2 बचे हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन राइट, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स प्रूव स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, व्हाट इज हैपनिंग, मल्टीप्लिकेशन। ये वन नोट थोड़ा थोड़ा कभी ड्रामा कर देता है, इट्स फाइन। चलो अच्छा, एज वी नो y1 इज बिलोंगिंग टू s, इट मीन्स इट्स अ सॉल्यूशन। तो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं y1 प्राइम प्लस px y प्राइम प्लस MCGN में 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है, मैं इसको लंबा खींच रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अदरवाइज 2 लाइन में ख़त्म करने का यहाँ कोई इसे लेने का कोई मतलब नहीं बनता अदरवाइज, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही ऑलरेडी, तो मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसे, इसीलिए मैं एलिबरेट कर रहा हूँ चीज़ों को ताकि जो भी कंसेप्ट है क्लियर हो। ऑलराइट अच्छा क्यू कहाँ चला गया, सॉरी QX। ऑलराइट तो ये अगर y1 बिलोंग करता है ऐसे, तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई होना है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय कोई एक टर्म ले लो, लेट्स से a, ठीक है। a क्या है यहाँ पर बता देना, यहाँ पर a क्या है, स्केलर है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है राइट, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है y1 प्लस p ऑफ x y1 प्राइम प्लस q ऑफ x y1 इक्वल टू a टाइम्स 0 राइट। इसमें कोई डाउट नहीं है, a टाइम्स 0 इज गोइंग टू बी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करते हैं इसको, a y1 प्राइम प्लस a टाइम्स, इसको मैं अगर px करके a यहाँ पर रख दूँ तो आशा करता हूँ आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। और यहाँ 0 लिख देता हूँ। अच्छा ध्यान दो, a y प्राइम डबल प्राइम, इज इट ट्रू, जस्ट चेक करो इसे, ठीक है, जस्ट वेरीफाई करो इसे। सिंपली ये होगा ट्रू, बिकॉज a क्या है, कांस्टेंट है राइट। अगर ये है तो फिर ये भी होगा, a y प्राइम, ये भी ट्रू होगा। अगर ऐसा है देन अब इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, पुट कर दो इसे, सो इट विल बिकम a y प्राइम, a y1 डबल प्राइम सॉरी प्लस px a y1 प्राइम प्लस qx a y1 राइट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, a y1 itself is satisfying the equation। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, a y1 is a solution of given differential equation, isn't it? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब साफ है दैट a y1 इज बिलोंगिंग टू s। थर्ड पॉइंट ट्रू हो राइट, 2 हो गए, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दूसरा एग्जिस्टेंस दैट इज क्लोजर लॉ, तीसरा क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं भाई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ऑलराइट ठीक है भाई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें क्या चाहिए, दैट इफ वी गॉट y1, अब यहां पर ध्यान रहे, यहां पर ये टर्म्स क्या हैं, ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को इंक्लूड करके नहीं चल रहे हैं राइट। सो कभी भी वेक्टर स्पेस की बात हो ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से निकाल देना, बिकॉज उसकी लिमिट 3D तक है, जो मैं वेरी फर्स्ट सेशन में अपना एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दैट वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दिस 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइजेशन राइट। ठीक है, तो y1 को अगर मुझे न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज मीन्स मुझे कुछ ऐड करना है यहाँ पर, तो डेफिनेट सी बात है -y1 अगर ऐड करता हूँ तो आई विल गेट 0। ठीक है, मुझे ये चेक करना है सर -y1 क्या सॉल्यूशन होता है या नहीं, देख लेते हैं एक बार।
हमारे पास है y1 अगर हमारा s से बिलोंग करता है तो y1 डबल प्राइम प्लस p y1 प्लस q x y1 गोइंग टू बी 0। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा रहेगा? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1, तो हमें मिलेगा -1 इंटू y1 प्राइम प्लस, अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा हुआ ये तो बच्चे का खेल है, इसमें ऐसा क्या करना है? बेसिकली इस बच्चे के खेल से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं सही बात ये है। क्वेश्चंस एक्चुअली आई थिंक 92 में मुझे एक क्वेश्चन मिला है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, बट 2 or 3 क्वेश्चंस आई गॉट विच आर एक्चुअली वो बहुत पहले के हैं। इट इज़ द लास्ट सिलेबस चेंज वाज इन 2017, बट देयर आई मीन वे बैक इन 2000 अराउंड और सो, राइट। सो इसका मतलब कि अब भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, ये केवल एक फ्लो बनाने के लिए है, राइट। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि सीधा जंप करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, वी हैव टू स्टार्ट विद ग्राउंड फ्लोर देन स्टेप बाय स्टेप विल रन, ओके, ठीक है। सो -1 into 0. Now everyone knows we can definitely write this thing, and here p of x minus y1 prime, right, plus q of x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है अगर तो मुझे कमेंट में इन्फॉर्म करो कि कहीं कुछ दिक्कत हो रही है। आई गेस इट्स नॉट दैट टफ, बट अगर फिर भी कहीं पर कुछ होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं, उसके लिए मैं मेल आईडी वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, राइट, वहाँ पर आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से वन मोर थिंग, अगर आप बिल्कुल ही इसको -1 डबल प्राइम करना चाहें तो वो देख सकते हैं, इसमें इट्स ईजी टू से दैट इट इज गोइंग टू बी -y डबल प्राइम, इट्स ओके, राइट। इट मीन्स सिंपली we can say that -y1 is a solution of given differential equation, right? इसका मतलब सिंपल है that -y1 is belonging to S। अगर ऐसा है तो हम अपनी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं। यहाँ पर हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी मिला है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस दैट इज क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये चारों कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब है दैट दिस इज द सॉल्यूशन स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। ऑलराइट, सॉल्यूशन स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस सिंपली, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी के लिए एक्चुअली वीडियोस में ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं यहीं स्टॉप होता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं सब स्पेस और लीनियर डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस बताऊँगा। एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने ये एग्जांपल ले लिया और एलेबोरेशन के चक्कर में काफ़ी टाइम खींच दिया। ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।